24/7. Today, we will be going through a lecture on financial market. This section has been asked a number of times in each exam, and this section is very brief. We will be going through these sections and understand what are the financial markets. Suppose financial markets are the market. Here is an household. For example, here is an household, and there are such number of households. Okay, this household having some surplus of money. Either they can deposit in banks, or they may invest. For the purpose of investment, okay, resources and investments, investing in the surplus. They may invest where they can invest. They may invest in money market, or capital market. Okay. Capital market is of two things. Either you are dealing in equity means shares. अगर आप जो shares purchase करते हो ये उस shares के बाद से equity purchase. And debt means it is a equity market and bond market. Okay. When you purchase an equity of a company, चलो ये company है. If this is a company M, if this is a company M, and here you are having 5 lakh rupees. For that 5 lakhs, you may purchase share of company M, either directly from the company or with another investor, or you may lend the money. Okay, means you can do either you can purchase shares or you may lend the money. Okay, either you may lend the money. If you are purchasing the shares of the market, then it is your equity purchase. It is the transaction of equity market. And if you are lending to company, this is called as a debt market. Debt markets because companies borrow from the market. तो शेयर और डेट में क्या डिफरेंस हुआ? जब आप शेयर खरीदते हो तो कंपनी के स्टेक होल्डर बन जाते हो. एक तरह से कंपनी के पार्शियल ऑनर बन जाते हो. और जो आपने इक्विटी परचेज की हुई है वो उसके शेयर कैपिटल में चली जाती है. अगर आपने कंपनी से खरीदा है, किसी दूसरे से खरीदा है, तो वो ऑलरेडी उस शेयर कैपिटल का एक पार्ट है, इक्विटी शेयर कैपिटल. बट इन केस ऑफ द बॉन्ड मार्केट और डेट मार्केट, ओके, यू लेंड मनी. आपने किसी कंपनी को 5 लाख की जरूरत है, आपने उसको लोन दे दिया, मीन्स वो दे दिया. बट सी, ओके, generally these instruments are unsecured instruments. Unsecured instruments means if the company fail to pay, you cannot recover from the company.
ऐसा ही होता है जब आप कभी डेट या इक्विटी में स्पेशली अगर इन्वेस्ट किए हो और वो कंपनी फेल हो जाती है या फ्रॉड निकल आता है, आप उसका एक भी रुपया नहीं पाते हैं। नाउ इन द मनी मार्केट, you know, there are a number of players. A number of players means banks, financial institutions, corporates. Okay, these are interbank market, and following entries will be eligible to participate in call, notice and term money markets both as borrowers and lenders. Okay, तो मनी मार्केट में कौन से बारोवर और लेंडर हो सकते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। दिस इज इम्पोर्टेंट, यू मे नोट दिस। मींस शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में बी पार्टिसिपेंट इन द मार्केट बट नॉट लोकल एरिया बैंक्स। पेमेंट बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। सी, पहले आरआरबीज को अलाउड नहीं था, नाउ इट इज अलाउड टू आरआरबीज आल्सो। एंड cooperative banks, district central cooperative banks also, state and district central cooperative banks are also work at market participants. Okay, see, now we will know what is the notice money and term money. ठीक है, notice money, this is related to borrowing and lending. Notice money means lending unsecured funds for tenure up to 14 days. Notice money means lending up to 14 days. Up to 14 days means 14 complete. Suppose today is 1/1/2025. Then if any bank lends money to another bank, बैंक को भी जरूरत पड़ती है ना लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए, ठीक है, वो अगर इसको इसमें 14 ऐड कर दो, ओके, 14 विल बी 15 प्लस 14 डेज के लिए दिया, ओके, देन इट विल बी टर्म्ड एज अ नोटिस मनी। नोटिस मनी, इंटरेस्ट रेट मार्केट ड्रिवन होता है एंड जनरली इट इज हाई। वाई? बिकॉज इट इज अनसिक्योर्ड। अगर आपने किसी बैंक को नोटिस मनी दिया और बैंक 14 दिन में फेल हो गया तो आपको कोई भी पैसा वापस नहीं मिलेगा। ओके, नाउ द टर्म मनी। टर्म मनी मीन्स exceeding 14 days and up to 1 year. This will be termed as a, which is more than 14 days but up to 1 year. Okay, then it will be termed as a term money. Again, this is unsecured lending and borrowing. नोटिस मनी और टर्म मनी दोनों ही अनसिक्योर्ड लेंडिंग और बारोइंग है, इसलिए इसका इंटरेस्ट रेट हाई होता है। सिक्योरिटी
अनसिक्योर्ड है तो कम होती है। अच्छा, अब ये है कि लिमिट कितना दे सकते हैं, ये आपके एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फॉरेक्स ऑफिसर का एग्जाम दे रहे हो, स्पेशली अगर डीलिंग का एग्जाम दे रहे हो, ऑफिसर फॉरेक्स डीलिंग या डोमेस्टिक बैक ऑफिस के लिए कोई एग्जाम दे रहे हो, तो देन इट इज इम्पोर्टेंट यू मे गो थ्रू दिस पीडीएफ एंड स्टडी। Now we will be going through what is the government security. Government security is any security, either it is issued by central government or state government. The government security, government security is any security issued by state or central government। स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी सिक्योरिटी इशू करती है, ठीक है। कभी म्यूनिसिपल बॉन्ड्स इशू होते हैं, स्टेट डेवलपमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी लोन लेती है, तो वो सिक्योरिटीज इशू करके लोन लेती है, तो देन दिस इज कॉल्ड एज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर आल्सो कॉल्ड एज गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज। अच्छा, इसको गिल्ट क्या कहते हैं? देखो, गिल्ट एक चांदी की तरह, चांदी तो नहीं होता, चांदी की तरह होता। तो पहले जो सिक्योरिटीज इशू होती थी, उनके ऊपर यहाँ पर इनके किनारे, एज मतलब किनारे पे गिल्ट की एक वो होता था, लेयर होती थी छोटी सी, किनारे किनारे ऐसे, वो एक डेकोरेटिव लेयर ही होती थी। इसीलिए हर किनारे पर गिल्ट, एज मतलब किनारे पर गिल्ट, गिल्ट मतलब एक मेटल होता है जिस जो लगा हुआ होता है इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी। पहले, अभी तो ऐसा नहीं है, पहले ऐसा होता था, अलग से आइडेंटिफाई होने के लिए, इसीलिए इसको बोलते थे गिल्ट एज सिक्योरिटीज। ओके, जनरली दीज आर आल्सो कॉल्ड एज रिस्क फ्री, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर रिस्क फ्री सिक्योरिटीज। ओके, now we go through the treasury bills, which are money market instrument. Treasury bills are money market instruments. These are issued for 91 days, और इसका डबल कर दो 182 डेज, या फिर इसका भी डबल कर दो 364 डेज। 365 डेज इसलिए नहीं होता, तो 1 ईयर हो जाएगा, लेस देन 1 ईयर के लिए है। अच्छा, क्या होता है? दीज आर जीरो कूपन सिक्योरिटीज। जीरो मीन्स जीरो, कूपन मीन्स इंटरेस्ट रेट, ठीक है। मीन्स जो ट्रेजरी बिल होता है, जैसे 100, चलो 100 का तो होता नहीं है, बट एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, 1000 का ट्रेजरी बिल है अगर गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट इस पे कोई इंटरेस्ट रेट नहीं देगी। वो बोलेगी कि अभी मैं इसको आपको 980 रुपीज में दे रही हूँ, ईयर के लास्ट में जब हमें इसे रिडीम करना होगा, तब मैं आपको 1000 रुपीज दूंगी। इसको बोलते हैं इश्यूड एट डिस्काउंट, मतलब कम प्राइस, जो प्राइस इसकी थी उससे कम पे इशू हुआ, और उसकी मेन प्राइस पे अब ये रिडीम हो जाएगा। ओके, ट्रेजरी बिल्स। कैश मैनेजमेंट बिल्स, ये 2010 में आया था। कैश मैनेजमेंट बिल्स होता है कि कैश मिसमैचेस के लिए आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया कैश मैनेजमेंट बिल्स। ओके,
जो गवर्नमेंट का कैश फ्लो है, इनवर्ड कम है और आउटवर्ड ज्यादा है, मतलब इनकम कम है उस समय पीरियड के लिए और आउटवर्ड ज्यादा है। तो इस मिसमैच को कम करने के लिए क्या होता है, कैश मैनेजमेंट बिल्स लाए गए। ओके, जनरल एंड दीज आर लेस देन 91 डेज, less than 91 days. Okay. Now the most important part comes to you, commercial paper. ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। Okay. We will go through commercial paper. Okay. Now we go through. Commercial paper is a short-term unsecured debt instrument issued by large corporations to raise meet short-term funding needs. मतलब लार्ज कॉरपोरेशंस, बड़ी कंपनीज, ओके, क्या है, शॉर्ट टर्म फंडिंग नीड्स के लिए दिस इश्यू कमर्शियल पेपर। ओके, कमर्शियल पेपर कौन इशू कर सकता है, कंपनीज इशू कर सकती हैं, एनबीएफसी इशू करती हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू करते हैं, या अदर एंटिटीज जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा हो। सी, कंपनीज, एनबीएफसी ऑल इंडिया के लिए ऐसा कोई नेटवर्थ का क्राइटेरिया देखो नहीं है। अगर इसके अलावा और कोई इशू कर रहा है तो उसकी नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए या 100 करोड़ हो। ठीक है, सी डी। अच्छा, 100 करोड़ किसका, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी इशू कर रही है, कोई गवर्नमेंट वैसी एंटिटी इशू कर रही है, ट्रस्ट इशू कर रहा है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की जो कंपनीज हैं वो इशू कर रही हैं, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट अगर ये इज इशूइंग द कमर्शियल पेपर, देन दे नीड टू हैव नेटवर्थ मोर देन 100 करोड़। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिए। ओके, दिस में बी आज दैट व्हाट इज द नेटवर्थ क्राइटेरिया फॉर इशूइंग कमर्शियल पेपर। सी, गाइडलाइंस क्या है इसकी कमर्शियल पेपर की, गाइडलाइंस आर दिस, ऑल फंड बेस्ड फैसिलिटीज अवेल्ड फ्रॉम द बैंक्स। मतलब जो कंपनी कमर्शियल पेपर इशू कर रही है उसने अगर किसी बैंक से लोन लिया है तो द लोन शुड बी स्टैंडर्ड। कब, जब वो इशू कर रहा है। Issuer who have defaulted on a CP shall not be allowed to access commercial paper market for 6 months from date of repayment of defaulted obligation। अगर किसी कंपनी ने पहले कमर्शियल पेपर इशू किया है लेकिन उसको टाइम पर पेमेंट नहीं किया तो वो 6 मंथ के लिए मार्केट से बाहर हो जाएगी। ओके, इट विल बी बार्ड फॉर द 6 मंथ फ्रॉम द मार्केट। नाउ, who may invest in commercial paper? All resident Indian can invest. Non-resident Indians are also non-residents. Okay, are also permitted to invest in commercial paper under FEMA. Non-residents means including NRIs and those outside, not Indian. Investment in regulated financial sector. Okay, no person can invest in commercial paper issued by related parties either the primary or secondary market। अगर रिलेटेड पार्टी इशू कर रही है आपकी तो आप कमर्शियल पेपर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इज डिनोमिनेशन। इट इज इश्यूड मिनिमम फॉर 5 लाख। मतलब अगर आप कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 5 लाख या
उसके मल्टीपल्स में इंटू 1 2 3, मतलब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, इस तरह से 5 10 एंड 15 एटसेट्रा, इस तरह से आप इशू कर सकते हो। दूसरा रेटिंग रिक्वायरमेंट है, यस हाई रेटेड कारपोरेट companies corporates may issue this. Minimum rating is A3 to issue. Okay. Further, eligible where total commercial paper outstanding during a calendar year is rupees 1000 crore, they shall obtain credit rating for issuance CP from at least 2 credit rating agencies. Okay. मतलब अगर इसने 1000 करोड़ से ज्यादा का कमर्शियल पेपर इशू कर दिया है और फिर से इशू करना चाह रहा है, तो उसको 2 क्रेडिट रेटिंग से एजेंसी से रेटिंग लेना होगा। अगर एक क्रेडिट रेटिंग ने दिया रेटिंग A3 और दूसरी क्रेडिट रेटिंग ने दे दिया BBB, तो देन ट्रिपल विल बी काउंटेड एंड इट विल नॉट बी एबल टू इश्यू द कमर्शियल पेपर। ओके। इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट ये कभी पूछा भी नहीं गया है और इट वुड नॉट बी आस्क्ड, बट वर्किंग ग्रुप ऑन द मनी मार्केट वाज श्री एन वाघुल कमेटी, ये आप याद कर लो बस, वर्किंग ग्रुप ऑन मनी मार्केट एंड वाघुल कमेटी। ओके। द नेक्स्ट थिंग इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अभी क्या है कि कमर्शियल पेपर में आपको रेटिंग याद रखना है। मिनिमम रेटिंग कितनी है? A3। नेटवर्थ का क्राइटेरिया सब पे लागू नहीं है, लेकिन जहां पर भी अप्लाई है वहां पर 100 करोड़ है। ओके, नहीं 100 करोड़ नहीं है। देखो ये अदर एंटिटीज के लिए है 100 करोड़, ठीक। ये याद रखना कि इसके लिए 100 करोड़ नहीं है, मतलब कंपनीज के लिए 100 करोड़ नहीं, ये नहीं। जो अदर एंटिटीज हैं उनके लिए वो 100 करोड़ है। अगर इसमें कंपनीज नहीं है, एनबीएफसीज नहीं है, एआईएफआईज नहीं है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। यू नीड टू लर्न। ओके। तो नेटवर्थ 100 करोड़ है, लेकिन 100 करोड़ किसके लिए नहीं है? अगर वो कंपनी है, एआईएफआईज है, पहले से परमिशन है, वो इश्यू कर सकती हैं, तो उनके नहीं। लेकिन अगर कोई अदर एंटिटी आती है तो उसको 100 करोड़ का नेटवर्थ रखना होगा। फर्दर अगर 1000 करोड़ से ज्यादा का फाइनेंशियल ईयर में उसने कमर्शियल पेपर इशू कर लिया है, तो नेक्स्ट इशू करने के लिए उसे 2 रेटिंग एजेंसी से रेटिंग करानी पड़ेगी, और उसमें से जो मिनिमम आएगा वही रेटिंग उसकी फाइनल रेटिंग होगी। ओके। नाउ वी कम टू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट introduced in 1989। negotiable मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। negotiable मीन्स जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, अगर आज मेरे पास है तो कल मैं इसको ट्रेड करके या बेच सकता हूं या किसी और को असाइन कर सकता हूं, दैट मीन्स निगोशिएबल। शॉर्ट टर्म ट्रेडेबल डिपॉजिट्स है, शॉर्ट टर्म है मतलब लेस देन 1 ईयर है। इश्यूअर्स ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कौन इशू कर सकता है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इशू करते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू करते हैं। मिनिमम अमाउंट एंड मैच्योरिटी पीरियड। ओके। देखिए मनी मार्केट है तो 1 ईयर ही रहेगा। अगर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो 1 to 3 years के लिए ले सकते हैं, बट you need to know it is money market, then 7 days to 1 year। अच्छा, अगर एग्जाम में आया तो आप क्या बोलोगे? 3 ईयर लगाओगे? अब इफ इट इज डायरेक्टली आस्क्ड, देन यू 7 to 1 year, 7 days to 1 year। मिनिमम अमाउंट कितना है? 1 लाख। मैक्सिमम 1 लाख के मल्टीपल में, मतलब 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, एनी अमाउंट you may in invest in certificate of deposit।
Okay. Retail direct scheme, it has already been asked a number of times. It is almost very much expected that it would not be asked. Zero coupon. Now we come to common types of bond. Zero coupon bonds means such type of security where interest rate is zero. ओके, मीन्स नो इंटरेस्ट इट पेज. आपने 1000 का सिक्योरिटी लिया, उस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, दैट इज जीरो. देन व्हाई एनी वन विल परचेज दिस सिक्योरिटी? बिकॉज सच सिक्योरिटीज आर इश्यूड एट डिस्काउंट. ऐसी सिक्योरिटी डिस्काउंट पे इशू होती है. मतलब 1000 रुपीज सिक्योरिटी विल बी इश्यूज फॉर 9,950 सपोज, and when you will be selling or they will be taking it back, they will give 1000 rupees to you, what is quoted in here. Okay, then this will work as a interest rate. Zero coupon means no coupon is fixed, coupon means interest rate. Convertible bonds means, बॉन्ड्स क्या होता है? बॉन्ड्स होते हैं बोरो करने के लिए पैसा. जैसे आपने 5 लाख के बॉन्ड खरीदे, आप जो ब्रांच में एफडी बनाते हो ना, वो भी एक तरह से बॉन्ड ही है. ठीक है, हालांकि वो दूसरी तरह का इन्वेस्टमेंट है, बट उसका रसीद का जो रिसीट का टाइप है ना, वो वैसा ही रहता है. अगर आप किसी को आपने 5 लाख रुपए बारोइंग के लिए दिए, बारो करके दिए, लेकिन क्या है, अब उसके पास मनी ही नहीं है, पैसा ही नहीं है आपको उधार देने के लिए, तो वो क्या बोलेगा? कहेगा मेरा शेयर खरीद लो, मैं आपको 5 लाख के शेयर अलॉट कर देता हूं. उसको बोलते हैं कन्वर्टिबल बॉन्ड्स. मतलब इस बॉन्ड में ऐसी कंडीशन रहेगी, इफ यू विलिंग, मतलब आप चाहो तो इसके बदले में शेयर भी ले सकते हो. ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं? ऐसे बॉन्ड्स इशू किए गए जो फंड इकट्ठा करने के लिए इशू किए जाते हैं, या एवरी बॉन्ड इशूज इन सच ए वे. Then if it is a green bond, that will it will be used, means funds is will be used for green projects or financing. Inflation index means bond is provide protection against inflation to bondholder. Masala bond, this has been asked. What is masala bond? चलो, इधर एक इंडियन कंपनी है, इस कंपनी का नाम लिख देते हैं एम इंडस्ट्रीज. ओके, अब इसने एक इंडियन रुपए में बॉन्ड इश्यू किया, लेकिन बॉन्ड ये जो बॉन्ड इश्यू किया, ये अपना आईएनआर का बॉन्ड यूएसए में बेच रही है. यूएसए वाले लोगों को बोल रही है कि अगर आपके पास आईएनआर है, या आईएनआर का बॉन्ड है, आप हमें देकर के ये बॉन्ड ले लो. अभी 1000 है इसकी फेस वैल्यू, हम 800 रुपए पे दे रहे हैं, बाद में आपको हम 1000 पे से बैक ले लेंगे. ओके, मीन्स if an Indian entity issue rupee denominated bond overseas, overseas means outside India, okay, देन इट इज कॉल्ड द मसाला बॉन्ड. तो ये पूछा नहीं गया है अभी तक, लेकिन नाम से ऐसा लगता है कि मसाला क्या है इसमें. इसमें कोई मसाला नहीं. देखो, सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड बंद हो चुका है, इसके आने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, बट ये बंद कब हुआ ये आप देख लेना, ये पूछा जा सकता है. स्वीट इक्विटी एंड गोल्डन शेयर. स्वीट इक्विटी क्या होती है? सम स्वीट इक्विटी रिफर्स टू द शेयर्स, SHARES होना चाहिए, shares issued at a discount to employees, directors and other stakeholders of the company. कभी कभी देखो, बैंकों ने अपना एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान लाया हुआ है, तो वो स्वीट इक्विटी होती है. उनको 10 रुपए का जो शेयर है, वो मान लो उनको 9 रुपए पे इशू हुआ, तो वो स्वीट इक्विटी होती है. गोल्डन शेयर क्या होता है? गोल्डन शेयर इज a शेयर दैट इट हैज वोटिंग पावर इवन हैविंग वन. देखो, ये थोड़ा सा समझाना है, व्हाट इज गोल्डन शेयर मैं समझा देता हूँ. ये रुक जाओ. ओके,
Let me add a page. Okay. Now, see, golden share means a share which provides voting rights even not in majority. ये प्रैक्टिस में नहीं, कहीं इंडिया में भी। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है गोल्डन शेयर। जैसे मान लो एक ये कंपनी है, इसने 1000 शेयर इशू किए। एक ये है, इसके पास 10 शेयर हैं, बी के पास भी 10 शेयर हैं, सी के पास 25 शेयर हैं, डी के पास 55 शेयर हैं। तो ये ओके, 100 शेयर्स मान लो, 100 शेयर्स इशू किए, इट विल बी इजी। ओके, 100 शेयर्स इशू किए, ए बी सी। तो अब देखो, अब वोटिंग राइट 25% के हिसाब से तो केवल सी और डी को है। लेकिन अगर ये कंपनी बोलती कि इसने 20 गोल्डन शेयर इशू किए हैं, जिसमें से ए के पास 1 शेयर है, बी के पास 19 शेयर है, बाकी सबके पास है, तो देन ए को भी वोटिंग का राइट होता। शेयर होल्डर्स की मीटिंग में कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो वोटिंग होती है ना। तो वोटिंग के राइट तब भी होते अगर उसके पास केवल एक ही शेयर है। ए को तो होता ही, बी के पास तो 19 है, तो उसको तो ऑलरेडी रहेगा ही गोल्डन शेयर। ठीक है, तो गोल्डन शेयर वो शेयर है, अगर आपका इफ इट इज ए not in majority, then also it is provides you voting rights. Hope you find this lecture useful. Study well and do well in exams. Thank you and happy learning.